ذات خدا کے بن کر ہے چھایا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان. عرفان رمضان میں خوش آمدید خواتین حضرات. میں محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کا انتظار کرتا ہوں، اور اس بزم میں جس کو ہم الف لام میم کہتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ کہ علماء کرام کی موجودگی اس میں ہوتی ہے، اور بوجھ ہو تو جانے کا یہ سیگمنٹ بھی ہوتا ہے. میں اس حسین اتفاق کے اوپر آپ کو جمع کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم ایک پاکستان، بلکہ پاکستان سے زیادہ امت مسلمہ کے اس ریاستی تصور کی طرف جائیں گے کہ جس کو ہم نے سمجھنا ہے، جس میں ساری قومیتیں، سارے مذاہب ضم ہو سکتے ہیں. میں بوجھو تو جانے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے قبل علماء کرام کا تعارف کروا کے اس محفل کو مزید خوبصورت بنانا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں بہت ہی پیارے. آپ کی گفتگو میں ایک لطافت اور عمدگی ہوتی ہے، نفاست آپ کا خاصہ ہے، اور علم و حکمت کے ابواب کھولتے ہیں ہمارے سامنے علامہ ارشاد حسین سعیدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ہمارے دوسرے عالم دین کو. بہت ہی پیارے لگتے ہیں جب یہ گفتگو فرماتے ہیں، اور میں بہت سارے دوستوں کو جو نوجوانی سے جوانی اور اس سے آگے کی عمر میں جا رہے ہیں، ان کو ایک روشن مثال تصور کرتا ہوں ان کے لیے کہ علم اور حکمت کے لیے، خاص طور سے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کو اس طرح سے وقف رکھیں، اور یہی عمدگی ہمیشہ برقرار رہنی چاہیے. علامہ تقی مہدوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارے ساتھ آج ایک تیسرے دوست بھی تشریف فرمائیں جو نمائندگی کریں گے ہندو کمیونٹی کی، جو پاکستان میں بھی ہے اور دنیا بھر میں ہے، اور ہم ان سے آج گفتگو کر کے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہاں کی کیسے حالات ہیں یہاں میں، اور وہاں میں قربتیں کس طرح مزید بڑھائی جا سکتی ہیں. ڈاکٹر منوج چوہان، کیسے مزاج؟ الحمدللہ. شکریہ. خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ. اور ساتھ ساتھ یہ کہ سید ریحان کی پیاری آواز میں ہم نعت بھی سنیں گے، دیگر کلام بھی سنیں گے، منقبت کی طرف بھی جائیں گے، اور میں آپ کو بھی کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ ساتھ بوجھو تو جانے کی طرف ہم آتے ہیں. دو نوجوان وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں جن کو آج ایک شخصیت کی طرف ہمیں لے کر آنا ہے. ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ تعارف کروائیے. وعلیکم السلام. شایان علی میرا نام ہے. وعلیکم السلام. سید زہرا رضوی. صحیح، دونوں کو خوش آمدید. آپ کا وقت علماء کرام کی اجازت سے شروع ہوا جاتا ہے. شخصیت ہم جانتے ہیں، آپ کو بتانا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں. آیا وہ مرد ہیں یا عورت ہیں؟ مفتی صاحب، کیا وہ مرد ہیں؟ مرد. جی مرد ہیں. معروف صحابہ ہیں. معروف سے کیا مراد ہے؟ معروف ہیں یا غیر معروف ہیں؟ مطلب بہت جانی مانی شخصیت. علامہ صاحب اس میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں. انہوں نے دو لفظ ملا دیے ہیں، ایک معروف اور ایک صحابہ. ہاں تو ہم نے ان معروف تو ہیں. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، صحابی نہیں ہیں، معروف تو ہیں. سمجھا آپ نے؟ معروف ہیں، صحابی نہیں ہیں. جی اہل بیت میں شامل ہیں. کیا اہل بیت میں شامل ہے علامہ صاحب؟ نہیں، آپ کا شمار اہل بیت میں نہیں. اہل عشق میں ہے، اہل عرفان میں ہے. واہ واہ. جی سیدہ، اور ساتھ ساتھ آپ دونوں آج اس مقابلے کے پارٹیسپینٹ ہیں. آپ کے پاس کم وقت ہے، سرکل بناتے جائیں، قریب آتے جائیں گے. آپ سرکل میں رہیں اور سرکل کو مزید کلوز کرتے جائیں. اپنی زندگی میں انہوں نے رسول خدا کو دیکھا تھا. صحابی آپ نے پوچھا نا، تو ہم نے یہی اس حوالے سے بات کی ہے. مفتی صاحب جی ظاہری حیات میں اس طرح ظاہر کی آنکھ سے نہیں دیکھ. واہ خوبصورت. یعنی آپ کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالمشافہ زیارت کر پاتے، تو گویا کہ صحابی نہیں. کسی جنگ میں انہوں نے رسول خدا کے بارے میں سن کے اپنے دانت شہید کر لیے تھے. اچھا، بہت قریب پہنچے. سوال یہ کہ یہ قریب کیسے پہنچے؟ اہل عشق اہل نظر پوچھا اور آپ نے کہا کہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں. اور یہ بھی فرما دیا کہ معروف ہے لیکن صحابی نہیں. ہاں مجھے تو دال میں کچھ کالا نظر ہے.
नहीं। चलें, आपने जो सवाल पूछा है मुफ्ती साहब, उसके जवाब में क्या कहेंगे हम? ये रिवायत है? जी, उनके बारे में ये रिवायत मारूफ तो है, अगरचे इसकी सेहत के बारे में उलमाए ने कलाम किया है, सही, मगर अवामुन्नास में मारूफ यही है। सही, ठीक। हाँ, जवाब आपको मिल गया। नाम ले लूँ? तो अब आपके ऊपर है। और भी कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं आप। देखिए, इलाके से कंफर्म करें आप। 6 सवालात आपके पास हैं और स्क्रीन पे भी 4 नाम चल रहे हैं, तो आप ख़वातीन और हज़रात, आप भी ज़रा फैसला करें कि आप कहाँ हैं। उनके नाम का पहला हर्फ अलिफ से आता है। पहला हर्फ अलिफ से आता है, तो मेरे नाम का भी आता है। आपके हम नाम हजरत अभी से करने। अच्छा, ज़बरदस्त। ठीक है, आपने जवाब दे दिया है, यही जवाब है। आप फैसला कर लेना। उससे भी तो कुछ पूछें, वो बेचारी खड़ी है। आप भी कुछ बोलें। माइक पे बोलें। यही जवाब है। दोनों का यही जवाब है? जी। यही जवाब है। आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ, वापसी का मौका नहीं मिलेगा आपको। कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं। यही जवाब है। एक ही शख्सियत ऐसी थी जो रसूल खुदा के इश्क में उन्होंने अपने दांत शहीद कर लिए थे, वो हजरत अवी से करनी थे। जनाब हजरत उवैस करनी, आप पे हमारा सलाम और यकीनन अहले इश्क का सलाम आप तक पहुंचता है। और जितनी भी ये तरीक़त है और ये जितना भी कमाल है जो दूरी से कुर्बत की तरफ लेकर आता है, इसका खासा आपको जाता है। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि आपकी शख्सियत पे भी ज़रा रोशनी डाल दें, क्योंकि आज बहुत सारे लोग आपसे नावाकिफ़ हैं। हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी शान बहुत वराउल वरा है। आपने आका अलैहिस्सलाम का ज़माना मुबारक पाया और आका अलैहिस्सलाम के ज़माना मुबारक में यानी हयात ज़ाहिरी में ही इसी इरादे से सफ़र भी किया, मगर आप वालदा की खिदमत में इस कदर मसरूफ़ रहते थे कि आपने ये बारहा ख्वाहिश के बावजूद ये इसकी तस्कीन नहीं कर पाए। फिर एक बार अपनी वालदा से इजाज़त लेकर गए, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो कुदरत भी इश्क का इम्तिहान लेती है। तो वालदा से ये वादा करके गए थे कि अगर तो आका अलैहिस्सलाम वहाँ मदीना पाक में होंगे तो मिलेंगे उनसे, शर्फ़ सोबत हासिल करेंगे और वापस आ जाएंगे, और अगर आका अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ फरमा ना हुए तो ना फिर उनकी तलाश में किसी और शहर जाएंगे, ना वहाँ इंतज़ार करेंगे। तो लिहाजा वो पहुँचे तो आका अलैहिस्सलाम कहीं बाहर तशरीफ़ ले जा चुके थे, लिहाजा फिर आप वापस आ गए। तो गोया ये देखिए कितनी बड़ी कुर्बानी है, शर्फ़ सिहाबियत को उन्होंने कुर्बान किया अल्लाह अपनी वालिदा की खिदमत पर। अल्लाह। और आका अलैहिस्सलाम ने उनकी अज़मत का किस अंदाज में ज़िक्र फरमाया। आका अलैहिस्सलाम ने अपने 2 सहाबा को, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, आपको आका अलैहिस्सलाम ने एक अमानत दी, तोहफ़ा दिया और भेजा कि जाकर उनसे मिलना और उन्हें कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करें। और उनकी दुआ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में से कसीर लोगों को माफ़ फरमाएगा, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत होगी। और आपको इश्क और जुनून के अंदर एक ख़ास मुकाम हासिल हुआ। इसलिए जो सिलसिला उवैसिया है वो आपके नाम से मंसूब है। ये जज्ब में, जुनून में और वारफ्तगी में ये अपनी एक ख़ास मुकाम रखता है और इस हवाले से अपनी ख़ास पहचान रखता है। तो आप मारूफ़ ताबई हैं। फिर बाद अज़ां आपने खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माना में जिहाद में भी शिरकत फरमाई और इसके अलावा आपने कई उमूर सर अंजाम दिए और रूहानी इल्म के फ़रोग़ और इशाअत में आपसे बहुत कुछ मनकूल है। मगर ये सब कुछ आपने सर अंजाम दिया अपनी वालिदा की खिदमत से सबक दोष होने के बाद। सुभान अल्लाह। उनका विसाल मुबारक हो गया और बाद अज़ां फिर आपने ये तमाम फ़राइज़ सर अंजाम। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, जिस तरह से मुफ्ती साहब ने बताया, आपने खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने को भी पाया, गोया उसमें आपकी शहादत भी हुई, वो क्या वाक़या? जी बिल्कुल। वैसे तो जनाब उवैस करनी का मकाम बहुत ही बुलंद वाला है और ये कहना बड़ा सख्त हो जाता है कि किस शरफ़ को उन्होंने छोड़ा है और किस शरफ़ को पाया है। खुद उनका शुमार ज़ुहाद समानिया में होता है, यानी 4 मशहूर ज़ाहिद तरीन अफराद जो सदर इस्लाम में गुजरे हैं, जिनमें जनाब हसन बसरी का नाम भी आता है, तो उनमें जनाब उवैस करनी का भी जिक्र आता है। और फिर आप हज़रत मौला कायनात के साथ जब मुत्तसिल हुए हैं और उनके साथ मुतमस्सिक हुए हैं तो हर जंग में उनके साथ रहे, यहाँ तक कि
जंग सिफ़ीन में जिस तरीके से हज़रत अम्मार यासिर की शहादत वाक़ हुई, इसी तरीके से हज़रत उवैस करनी भी जंग सिफ़ीन में शहादत का जाम नोश फरमाते हैं। और दोनों बुजुर्गवार की कब्र मुबारक भी शाम में मौजूद है, अच्छा। रिक्का के मकाम पर। तो हज़रत अम्मार यासिर और हज़रत उवैस करनी दोनों ही ये हस्तियाँ वो हैं कि जो वहाँ पर मदफून है। अलबत्ता हज़रत उवैस करनी के बारे में एक ये भी एहतमाल है कि शाम में जो बाबु सगीर है दमिश्क में, वहाँ पर भी एक उनकी कब्र मंसूब है। मुमकिन है कि वो भी कब्र हो सकती है, लेकिन बहरहाल शाम ही में उनकी फिर शहादत वाक़ हुई, वहीं उन्हें मदफून किया गया। ठीक, वाज़ेह हो गया। बड़ी इसमें रोशनी है उन लोगों के लिए जो अंधेरे में रहते हैं और तलब वालों को मिलता है सिवा। मैं आज मौजू पे भी आना चाहता हूँ। ये ख्वाहिश है कि आज हम रियासत मदीना के उस पहलू की तरफ जाएं जिसमें अक़लियतों के हुकूक और रियासत की ज़िम्मेदारियों के हवाले से बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस्लाम इस हवाले से क्या कहना चाहता है, इस्लाम किस तरह से हुकूक की वजाहत करता है और किस तरह से हुकूक को बचाता है, यानी सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है अक़लियतों के। मुफ्ती साहब, इस्लाम ज़ाहिर एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है और एक ऐसी रियासत जिसमें इस्लाम रूलर हो और उसकी हाकमियत हो और उसके अहकाम को माना जाता हो, उसमें अक़लियतों के लिए क्या है? गोया कि उनको अपने साथ मिला के रखता है, ये ज़्यादा हुकूक देता है या हुकूक की सलबी करता है? देखिए, इस्लाम की तारीख़ में ये मिसाल तो मौजूद है कि जब इस्लाम का गलबा हो, मुस्लिम रियासत पूरी तरह ताकतवर थी, तो अक़लियतों के हुकूक को पामाल नहीं किया गया। सही। ये मिसालें तो मौजूद हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म रवा रखा गया हो जब कभी कुफ्र की किसी रियासत को ताकत हासिल हुई हो, मगर ये मिसाल मौजूद नहीं कि मुसलमान रियासत बशर्ते कि वो सही मानों में इस्लाम की तालीमात पर अमल कर रही हो। तो इस्लामी रियासत मौजूद हो और इस्लामी कानून की अमलदारी मौजूद हो तो अक़लियतों को मुसलमानों के बराबर हुकूक दिए गए, कानूनी एतबार से भी, मुआशरती एतबार से भी। देखिए, कुरान मजीद की वो सूरह मुबारका अल-काफ़िरून जो चारों कुल हैं, तो पहली सूरह मुबारका यही है। उसका इख्तिताम किस लफ्ज़ पर होता है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आका अलैहिस्सलाम को हुक्म मुबारक होता है कि आप उन्हें कहिए तुम्हारा एक दीन है और मेरा भी दीन है। तो गोया उनका जो भी दीन था, अगरचे वो दीन नहीं था, इसके बावजूद जिसे वो दीन समझते थे उसे उनके तसव्वुर और ख़्याल के मुताबिक दीन का दर्जा दिया गया है। इस्लाम हमें ये तलकीन कर रहा है कि बेशक उनका दीन दीन ना भी हो, लेकिन वो चूँकि उसे दीन समझते हैं, लिहाजा उनके ख़यालात, उनके अकायद और उनके नज़रिए का एहतराम ये तकाज़ा करता है कि उन्हें उनके दीन का पूरी तरह हक़ है। जैसे हमें हमारे दीन का हक़ है, उन्हें उसी तरह दीन का हक़ है। तो इसी तरह जब दीन में उनको हक़ है पूरी तरह अपने दीन के ऊपर अमल दरामद करने का। दूसरा, कुरान मजीद ये तलकीन फरमाता है कि ला इकराहा फिद्दीन, इसका इतलाक़ भी इसी पर्सपेक्टिव में हो रहा है कि किसी काफिर को जबरन मुसलमान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मुसलमान तो तब होगा जब वो तस्दीक़ क़ल्बी से आएगा, और अगर दिल ही उसका मुतमईन नहीं और उसको जबरन इस्लाम के अंदर दाखिल होने पर मजबूर किया गया है तो वो किसी तौर पर मुसलमान हो ही नहीं सकता। इसलिए जबर को कुरान मजीद ने बराह रास्त मना फरमा दिया। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि मुस्लिम रियासत के अंदर तमाम गैर मुस्लिम, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, अहले किताब हों या गैर अहले किताब हों, उनको अपने अकायद पर अमल करने का राइट है, अपने अकीदे पर चलने का, अपनी इबादत जिस तरीके पर हैं उन्हें अपनी इबादत और इबादत गाहें वो सब कुछ कायम रखने और जारी व सारी रखने का पूरी तरह हक़ हासिल है। फिर मुआशरती एतबार से उन्हें बराबर का हक़ है, कानूनी एतबार से उन्हें बराबर का हक़ है। मैं इसमें ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या उनको कानून साज इदारों में भी शामिल किया जाना चाहिए? क्या इस्लाम इसमें किस तरह से फ़ैसला सादर फरमाता है? एक मुख्तसर सा वक़्फ़ा है ख़वातीन व हज़रात, हम लौट कर आएंगे, मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे, आपका इंतज़ार रहेगा। रहमत खुदा के बनकर है छाया, इरफ़ाने रमज़ान, इरफ़ाने रमज़ान, इरफ़ाने रमज़ान, इरफ़ाने